This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. This is the first unit of this block, Introduction to Reliability. The word reliability you have heard many times, but in reliability theory it has some different sense as you use in the daily life. Here means the reliability means that in this first of all in this block we define the reliability and various terms which are used in the reliability theory. And in reliability we means that the component of a unit is survive or fail due to the operation. Okay, so and reliability is based on the probability. So we use some concept of the probability in this block, and some definitions as the cumulative failure distribution function, which is work as the simple distribution function capital Fx as in the MST 003. Some concept will be used in this of MST 003 in this block. This block is very easy to handle, and the question are not as typical as much. You can easily attempt this question in the examination and in the assignment. Okay, so now we can start with the what do you mean by the reliability? Yes, so the definition of the reliability is reliability of a component or a device or a unit or a system is the probability that it performs its intended function adequately for a specified period of time under the given operating condition. So basically reliability क्या है? It is the probability. और किस बात की probability? That जो भी component है जिसकी हम reliability निकाल रहे हैं, it performs its intended function adequately for a specified period of time. कि जो भी उसका intended function है, जो उसका function है, जो उसे काम करना है, वो adequately करता रहे for a specified period of time under the given operating condition. जो भी ऑपरेटिंग कंडीशन गिवन है उनके अंदर वो एक स्पेसिफाइड टाइम तक इंटेंडेड जो उसके ऊपर फंक्शनिंग है उसको एडुकेटली अगर करता जा रहा है तो इट मींस दैट द फंक्शन इज द रिलायबल फंक्शन एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग इट्स एक्टिविटी is called the reliability. Since the reliability is a probability and you know that probability lies between 0 and 1, so reliability also lies between 0 and 1. So we come on the bold terms. What do you mean the probability, intended function, adequately, time, and given operating condition one by one. So probability means when a number of identical components operate under similar condition, the failure time of components generally vary from component to component. It means that अगर हम एक से components, same unit, same bulb अगर हम ऑपरेटिंग में लगा दें तो उनके जो फेलियर टाइम वो क्या होगा, वो वैरी करता रहेगा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू एंड अदर कंपोनेंट एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट देयर फेलियर टाइम एग्जैक्टली इन एडवांस. और हम शुरू में नहीं बता सकते कि कौन सा कंपोनेंट कब फेल होगा, बट वी कैन डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ फेलियर इन द probabilistic terms. For example, suppose we put n0 identical component in operation at time t0. n0 means कोई भी एक number of component हमने at time 0 पर हमने उसको operating करने इस operation में लगा दिया. Until suppose after time t मान लेते हैं कि number of component has that are operating at time t and s is survival means operating रहे and f यहाँ पे n तो नंबर को इंडिकेट कर रहा है, t टाइम को इंडिकेट कर रहा है और जो s सफिक्स है वो सर्वाइवल को यानी वो ऑपरेटिंग रहे उस टाइम पे
और एफ जो इंडिकेट कर रहा है कि यानी उस टाइम पे वो एट टाइम टी पे वो फेल हो गए। तो रिलायबिलिटी RT at any time t is defined as number of survival units upon total number of units। यानी अगर हमने जीरो टाइम पे किसी टाइम पे हमने n कंपोनेंट स्टार्टिंग में लगा दिया और हमने देखा कि भाई 1 घंटे बाद कितने कंपोनेंट सर्वाइव रहे, तो 100 में से मान लेते हैं कि हमारे 60 जो है वो सर्वाइव रहे, तो 60/100 कैन बी treated as the reliability of that component। ओके, these component are identical component, एक से component है, ऐसा नहीं कि वो भी डिफर कर रहे हैं। ओके, तो रिलायबिलिटी ये एनएस क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एनएस की? एनएस इज द सर्वाइवल। हो सकता है कि सारे के सारे फेल हो गए हो टाइम टी पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0/n0 इज 0। हो सकता है कि सारे के सारे सर्वाइवल हो, ठीक है, तो फिर उस टाइम पे क्या होगा कि एनएस क्या होगा, n0 बराबर हो जाएगा, तो n0 n 1, यानी कुल मिला के जो रिलायबिलिटी है वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, अब आता है सेकंड टर्म्स है intended function। intended function एग्जांपल देख सकते हैं। what does this mean? Suppose that the reliability of a refrigerator of a particular company at 10 years is this। रिलायबिलिटी गिवन है कि रेफ्रिजरेटर है, उसकी रिलायबिलिटी आफ्टर 10 ईयर इतना है। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोबेबिलिटी है। इट मींस this can be interpreted as follows: out of 10,000 refrigerator of the particular company, approximately 9,452 refrigerator work without failure for 10 years। इसका मतलब क्या है कि 10 साल तक लगभग इतने रेफ्रिजरेटर क्या है वो वर्क करते रहेंगे, ठीक है। तो इंटेंडेड फंक्शन से मतलब क्या है? इंटेंडेड फंक्शन से मतलब है कि जो भी फंक्शन उसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट है, जो उसके फंक्शन है, जो उसका काम है, दिस इज कॉल्ड द इंटेंडेड फंक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है एक पंप का, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। इफ ए पंप इज डिजाइन टू डिलीवर एट लीस्ट 30 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट, दिस द इंटेंडेड फंक्शन ऑफ द पंप इज टू डिलीवर इतने गैलन और मोर। ऐसे हम अपनी बैटरी का ले सकते हैं। मान लीजिए लैपटॉप की बैटरी है, वो कह रहा है कि भाई ये लगभग 3 आवर्स जो है वो वर्क करेगी, तो इंटेंडेड फंक्शन क्या हो गया बैटरी का, 3 आवर्स। तो ऐसे ही हर जो भी कंपोनेंट हम यूज करते हैं जनरली उसका इंटेंडेड फंक्शन होता है। अब एडुकेटली का मतलब क्या है? एडुकेट का मतलब है कि जो भी उस पे इंटेंडेड फंक्शन है उसकी, वो प्रॉपर वे में करता रहे। ए प्रोडक्ट इज सेड टू परफॉर्म एडुकेटली इफ इट इज परफॉर्मिंग इट्स इंटेंडेड फंक्शन एज एक्सपेक्टेड। अगर वो अपनी परफॉर्मिंग करता रहेगा तो हम कहेंगे कि वो एडुकेटली है। इट मींस दैट फॉर एग्जांपल इन दिस नीडेड फंक्शन ऑफ ए वाटर पंप इज टू डिलीवर 300 gallons or more water and it is delivering 300 gallons or more water per minute, it means that it performing adequately। अगर पंप पे ये लिखा है कि भाई वो 300 गैलन वाटर देगा पर मिनट, और वो ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अपना वर्क वो एडुकेटली कर रहा है। पर अगर वो इससे कम पानी देता है, इससे कम पानी उठा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी पंप है काम नहीं कर रही है। ऐसे हम बैटरी के सेंस में ले सकते हैं कि लैपटॉप की अगर बैटरी है, अगर वो 3 आवर्स नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एडुकेटली अपना काम नहीं कर पा रही है। ओके, टाइम। टाइम जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो हम टाइम भी 100% टाइम को भी हमें लेना होता है, क्योंकि वी नो दैट कि कोई भी कंपोनेंट है उसकी लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ कम होती चली जाती है। तो टाइम भी हम जब रिलायबिलिटी डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हमें टाइम भी लेना पड़ेगा। तो you should always keep in the mind that reliability can be meaningful only if it is related to a time interval or a period of time। For example, we can say that reliability of a component is 0.98 for a mission of 100 hours। अगर हम 100 hours नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपोनेंट है उसकी रिलायबिलिटी इतनी है, अगर हम उसे 10 साल बाद भी देखें तो उसकी मतलब उसकी रिलायबिलिटी यही रहेगी। पर ऐसा नहीं होता है। रिलायबिलिटी टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो उस टाइम पे इसलिए टाइम मेंशन करना बहुत जरूरी है। बट द स्टेटमेंट reliability of a component is 0.95 is meaningless since the time interval is not known। Okay, so reliability is the number of component performing intended function at time t। Okay, when the component is start at time t।
तो रिलायबिलिटी हम जब भी, क्योंकि देखो रिलायबिलिटी को हमने फंक्शन भी बनाया, रिलायबिलिटी लिखिए आर टी फॉर टाइम, तो टाइम का फंक्शन है रिलायबिलिटी, तो हम जब भी रिलायबिलिटी देखेंगे तो टाइम भी साथ में उसमें इंक्लूड करेंगे। गिविंग ऑपरेटिंग कंडीशन, गिविंग ऑपरेटिंग कंडीशन वही है कि जब हम कोई जब हम मान लीजिए इसकी बात करें परफॉर्मेंस ऑफ द पंप, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो लाइट है हमारी वो उसकी वोल्ट 250 होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो दिस इज कार द कंडीशंस। तो ऑपरेटिंग जो भी हम रिलायबिलिटी निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग गिवन ऑपरेटिंग कंडीशंस पे निकालेंगे, जो भी हमारी कंडीशंस उसने गिवन होगा। तो चलिए ये तो वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिलायबिलिटी, जिसमें हमने जाना कि रिलायबिलिटी क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो अपना फंक्शनिंग करता रहे विदाउट फेलियर। इसमें जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो फेलियर कंसीडर नहीं करते, विदाउट फेलियर जब तक वो परफॉर्म करेगा वो रिलायबल माना जाएगा। और रिलायबिलिटी इज ए प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा रिलायबिलिटी की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। और रिलायबिलिटी इज ए कंपोनेंट ऑफ द is defined with the time. Without time, it is not a it is meaningless. So, which of the following is not a part of the definition of reliability? Probability भी time है, intended function भी time उसमें लिया था हमने, time भी लिया था, certainty हमारी definition में नहीं था। The maximum possible value of reliability for a given period of time is, yes, कितना होगा? कोई बताएगा? Anyone? 1, because the reliability is the probability, और आप जानते हैं कि probability क्या है, वो 0 1 के बीच में लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम की बात चल रही थी, तो अगर 0 पे देखें कि हमने क्या किया कि 100 कंपोनेंट हमने एट टाइम 0 पे हमने स्टार्ट कर दिया ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो तब तो क्या हो गया, 100 के 100 हमारे क्या होंगे, सर्वाइव होंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलायबिलिटी, सर्वाइवल नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल, तो सर्वाइवल भी टोटल के बराबर ही होंगे, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1 होगी, रिलायबिलिटी 1 होगी। पर जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा, एज टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा कि नंबर ऑफ सर्वाइवल्स क्या है वो हमारे घटते जाएंगे और बिकम्स 0 हो जाएंगे। तो 0 अपॉन n 0 इज 0। तो here we can write as, तो 0 पे 1 होगा, since no component fails at time 0 and t tends to infinity, it becomes 0। क्योंकि क्यों होगा 0? क्योंकि since no component can survive forever, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं बना जो हमेशा के लिए वर्क करता रहे। चलिए अब लेते हैं कुछ बेसिक, देखिए नया, जब भी मैंने बताया था कभी भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़नी होती है, तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक फंक्शंस हैं इन रिलायबिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप। एक तो है रिलायबिलिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन। देखिए ये तो आपने पहले ही पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा है आपने, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा हुआ है, बस अब यहाँ फेलियर लग गया, क्योंकि वहां पे तो हमारा जो वेरिएबल था उसको हम एक्स से डिनोट करते थे, और एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल होगा वो होगा टाइम टी, तो टी टी इज द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसमें नया वर्ड ऐड कर दिया फेलियर, ओके, दोनों में। चलिए आगे लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन है रिलायबिलिटी फंक्शन। तो रिलायबिलिटी फंक्शन मैं एक छोटी सी डेफिनेशन नोट करा देता हूं आपको, मैंने अलग से तो नोट्स में नहीं लिखा था इसके। यस, रिलायबिलिटी फंक्शन reliability function can be defined as, the reliability function किस चीज का, of a component, of a component can be defined, कैसे डिफाइन करेंगे रिलायबिलिटी फंक्शन? रिलायबिलिटी फंक्शन एक्चुअली सेम एज अ रिलायबिलिटी है, बस उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड करा है। रिलायबिलिटी फंक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किस बात की प्रोबेबिलिटी? दैट द फेलियर, that the failure time of the component
of the component is greater than a given time. Reliability function of a component can be defined as the probability है किस बात की probability that the failure time of the component is greater than a given time, say t. Sorry, say t. तो कैसे इसको लिख सकते हैं आगे? एक्चुअली मैं इसलिए से नोट डाउन कर रहा हूँ क्योंकि इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं। तो रिलायबिलिटी को हम इंडिकेट करेंगे आर टी से, क्योंकि टाइम का फंक्शन है। आर टी क्या है? प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी को पी से इंडिकेट करेंगे। और किस बात की प्रोबेबिलिटी है? कि प्रोबेबिलिटी दैट टी इज द टाइम, कि जो हमारा कंपोनेंट है किसी एक जो उसका फेलियर टाइम है, टी इंडिकेट कर रहा है उसके फेलियर टाइम को, तो फेलियर टाइम उसका ग्रेटर है एट एनी टाइम टी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट है एट स्मॉल टाइम टी पे क्या होगा, वो सरवाइव करेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज reliability can be defined as the probability that the failure time से t is greater than a given time t। तो अगर हम इसे देखें तो कुछ कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है। अगर हम बात करें fx की, अगर आपको याद होगा हम जब हमने स्टडी किया था जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर, तब हमने fx बहुत यूज किया था। तो fx इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी थी कि x, कैपिटल X इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। तो यहाँ पे क्या है कि वो x की जगह तो कैपिटल T में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हम यहाँ फेलियर टाइम की बात कर रहे हैं। तो एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे कॉन्टिन्यूअस के केस में, क्योंकि टाइम हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वी हैव टू क्या करना होगा उसके लिए? डिफरेंट, उसके लिए हम कंटिन्यूअस के केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वी हैव टू बी इंटीग्रेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहां से कहां तक? यहां से t से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द रिलायबिलिटी एंड एट आर जीरो पे, जीरो टाइम पे कितना होगा? पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो पे इसकी वैल्यू होगी 1। और अगर हम बात करें इन्फिनिटी पे, तो आर इन्फिनिटी तो शायद नहीं बनेगा, इन्फिनिटी पे क्या होगा? इसकी वैल्यू होगी 0। तो अगर डेफिनेशन आती है तो कभी कभी इनकी डेफिनेशन आ जाती है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, 2 डेफिनेशन पूछ लेता है। तो उसमें रिलायबिलिटी फंक्शन की पूछ सकता है, हजार्ड रेट अभी आगे पढ़ेंगे आप, उसकी पूछ सकता है, और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इन सब पे डेफिनेशन पूछ सकता है। तो जो मटेरियल है उसमें कहीं डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये नोट डाउन करा दूं। तो ये डेफिनेशन होगी, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इरेज कर दूं इसको? यस सर। चलो फिलहाल साइड में रख देते हैं। ओके, चलिए अब इसके कर्व की बात करें। तो इधर टाइम रखते हैं, इधर हम रिलायबिलिटी रखते हैं। तो रिलायबिलिटी जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज करेगा, तो रिलायबिलिटी भी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ फेलियर्स क्या है? वो बढ़ते चले जाएंगे, और नंबर ऑफ सर्वाइवल क्या है? वो कम होते चले जाएंगे, तो रिलायबिलिटी भी हमारी कम होती चली जाएगी। अब आता है क्यूमुलेटिव फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ये खाली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, तो कैपिटल एफ एक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो कैपिटल एफ एक्स क्या होता है? तो यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल एफ टी। तो यहाँ पे हम, क्योंकि टाइम टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज कर दिया, क्यूमुलेटिव फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया। ओके, ये सेम ऐसे ही जो पहले था कि इट इज द प्रोबेबिलिटी, और किस बात की प्रोबेबिलिटी है? कि हमारा जो टी है वो लेस देन इक्वल टू होगा एक टी के। तो
This is the probability. Sorry. Okay. So define as the probability function ft by ft is equal to, तो ये होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको ऐसे लिखें, this can be written as 1 minus probability किस बात की probability कि t greater than t. ओके, ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है हमारा? अगर हम इसकी बात करें, ये तो हमारी रिलायबिलिटी है। तो अगर हम कैपिटल और रिलायबिलिटी की रिलेशनशिप की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं आर। इट मींस दैट जो हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, फेलियर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रिलायबिलिटी, ये दोनों क्या है आपस में 1 माइनस के साथ है, या इन दोनों का टोटल क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे रिलेशनशिप को, कभी जरूरत पड़ेगी तो। तो अगर आपने लिखना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेट अस डिफाइन द प्रोबेबिलिटी टाइम फंक्शन ft इज गिवन बाय, ऐसे लिख दीजिए, इसको रिलायबिलिटी इन रिलेशनशिप में दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। इरेज कर दूं। और देखिए आर टी तो दिखाता है रिलायबिलिटी को, और ये क्या है 1 माइनस आर टी, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अनरिलायबिलिटी को भी दिखा सकता है। तो फंक्शन एंड गिव्स द अनरिलायबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट अप टू टाइम टी। पर जनरली हम इसका यूज नहीं करते अनरिलायबिलिटी वर्ड, हम रिलायबिलिटी का यूज करेंगे। एंड आर प्लस क्यू, क्यू फोर यहाँ पे इज इक्वल टू 1, क्यू यहाँ पे क्या है हमारा एफ टी है। अगर इसका ग्राफ देखें तो देखिए रिलायबिलिटी ग्राफ तो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ डाउन आया था, और ये रिलायबिलिटी का जस्ट अपोजिट है। तो रिलायबिलिटी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? तो ये नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, और क्योंकि ये भी प्रोबेबिलिटी है तो ये भी 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, अब बताएं फेलियर डेंसिटी फंक्शन। लास्ट टाइम ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो फेलियर डेंसिटी फंक्शन कैन बी डिफाइन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ द कैपिटल एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या बचा है? कैपिटल एफ टी। ओके, तो अगर कैपिटल एफ टी पता है तो हम उसको स्मॉल एफ टी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको नोट करा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन भी नहीं है यहाँ पे। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। तो दिस इज द फेलियर डेंसिटी फंक्शन। द फेलियर density function can be defined as the derivative मतलब differentiation, derivative of किस चीज का डेरिवेटिव है? ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, और रैंडम वेरिएबल भी लिख सकते हैं, टी, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये तो हो गया पूरा वैसे तो, पर डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए कैसे डिनोट किया जाता है ये सब भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना? इट इज डिनोटेड बाय कैसे डिनोट करते हैं इसको? एफ टी से डिनोट करते हैं, एफ टी से। अब इसे बता देते हैं क्या है ये। तो एफ टी, और इसको हम लिख सकते हैं क्या? ये एफ टी, एफ टी इज इक्वल टू क्या है? वो डेरिवेटिव है टी अपॉन, कौन का साइन तो मेरे पास नहीं आएगा, चलो ऐसे लिखते हैं, डी टी, और किसका? कैपिटल एफ टी का, एफ एंड टी। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके,
इसका भी हम बहुत कम यूज करेंगे, हम उल्टा करेंगे, हम इसकी हेल्प से कैपिटल एफ टी फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इसकी हेल्प से कैपिटल एफ टी फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम में। तो कैपिटल एफ टी हमारा है क्या, कैपिटल एफ टी हमारी है प्रोबेबिलिटी, और किस बात की प्रोबेबिलिटी है, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, और क्या प्रोबेबिलिटी है, ए कैपिटल टी इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल टी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, कहां से कहां तक, जो ये लिमिट दी होती है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी की लिमिट दी हुई है, टी की वैल्यू कहां तक जा रही है, कैपिटल टी तक, तो इंटीग्रल करना पड़ेगा। इंटीग्रल करेंगे, अब इंटीग्रल कैसे यहाँ पे आएगा साइन, तो हो जाएगा क्या, नहीं हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं, इसको पेन से ले लेंगे। इंटीग्रल कहां से कहां तक, लोअर लिमिट तो नहीं गिवन है, पर टाइम है तो टाइम नहीं, जीरो से कम तो नहीं हो सकता, तो जीरो से लेके टी और एफ टी, सेम वही है जो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें ऐसे ही हमें अगर आर टी निकालना हो, यानी रिलायबिलिटी निकालनी हो विद द हेल्प ऑफ फेलियर डेंसिटी फंक्शन, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, या तो हम इसी को ही वन माइनस कर दें, या हम निकाल लें। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले। तो अगर रिलायबिलिटी निकालनी है तो आर टी अगेन प्रोबेबिलिटी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल टी, तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो यानी इसको भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, टी से, इस बार जो ये है वैल्यू टी से ग्रेटर है, तो टी नीचे आ जाएगा, ग्रेटर कहाँ तक, टाइम तो हमारा आगे तक जा सकता है, तो इसलिए हम लेंगे से अपर लिमिट तक, इनफाइनाइट तक, और एफ टी टी, तो वी कैन फाइंड आउट द रिलायबिलिटी विद द हेल्प ऑफ फेलियर डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल भी है, क्वेश्चन भी है, हम अभी लेंगे अभी इसको। चलिए तो आगे लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फेलियर डेंसिटी फंक्शन, और ये सब इन्हें रिलेशनशिप बना दिया, देखिए यहाँ पे आ गया ये, कैपिटल एफ टी को निकाल सकते हैं जीरो से टी इंटीग्रल करके, और रिलायबिलिटी को निकालने के लिए टी से इन्फिनिटी में इंटीग्रल करना। जनरली देखिए रूल तो है इंटीग्रेशन का कि अगर लिमिट में टी बैठा होगा तो हम यहाँ पे टी नहीं लिखते, फिर हम उसको या तो एक्स लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक है, पर चल जाता है क्योंकि आप प्योर मैथ्स में तो नहीं चलता, पर स्टेटिस्टिक में हम लोग चला लेते हैं, पर फिर भी अगर आप लिख सकते हैं यू तो बेटर होगा। तो अगर लिमिट में टी बैठा हो तो फिर हम इसको चेंज कर देते हैं, तो यू डी टी लिख सकते हैं। तो इन्होंने यही करके दिखाया कि क्योंकि टी लिमिट में बैठा था तो एफ यू डी यू कर दिया। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, इसे ग्राफ की जरूरत है क्या, नहीं है। हजार्ड रेट, देखिए ये भी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, और ये डेफिनेशन ठीक लिखा है, इसमें कोई मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फेलियर एट टाइम टी इज नोन एज द हजार्ड रेट। ये जो हमारे कंपोनेंट है वो किस रेट से फेल हो रहे हैं, उनका रेट क्या है फेल होने का, इज नोन एज द हजार्ड रेट, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा टी, और इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा टी से। ये भी कंपोनेंट होगा टी का, जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो शायद रिलायबिलिटी जो हमारा फेलियर रेट है वो शायद बढ़ जाए या कम होगा, वो हम देखेंगे अभी आगे। बाथटब कर्व एक यहाँ पे टॉपिक है, उसमें इंडिकेशन किया हुआ है कि जो हमारा हजार्ड रेट है या फेलियर रेट है वो टाइम के साथ कैसे मैनेज होता है। अब इसका हजार्ड रेट और अगर रिलायबिलिटी में क्या रिलेशनशिप है कोई, तो इसमें रिलेशनशिप भी है, उसको देखते हैं कि वो क्या है। मैं डेरिवेशन तो नहीं आप लोग करा रहा, डेरिवेशन तो नहीं करा रहा हूँ, पर यस रिलेशनशिप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास हजार्ड रेट को अगर फाइंड आउट करना हो तो हजार्ड रेट कैन बी फाइंड आउट बाय द रिलेशनशिप एफ टी अपॉन आर टी, एफ टी अपॉन आर टी से मैं फिर उसको निकाल सकते हैं। तो एफ टी हमारा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या फेलियर डेंसिटी फंक्शन, और कैपिटल आर टी हमारा रिलायबिलिटी फंक्शन। ओके, अब है रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑल, सब में क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए ये टेबल भी आपकी फॉर्मूला बुकलेट में गिवन है, ये टेबल कि क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं। ये तो यहाँ डेरिवेशन किए हुए, तो डेरिवेशन तो मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप एक मतलब के नहीं। चलिए, तो रिलायबिलिटी की रिलेशनशिप रिलायबिलिटी से डैश हो गई। रिलायबिलिटी की डेफिनेशन रिलेशनशिप कैपिटल एफ से, क्योंकि दोनों अपोजिट थे,
तो अगर रिलायबिलिटी है तो कैपिटल से अगर निकालना हो रिलायबिलिटी तो 1 माइनस कर सकते हैं, तो रिलायबिलिटी आ जाएगी। अगर स्मॉल टी से रिलेशनशिप देखना हो तो रिलायबिलिटी को स्मॉल टी से निकालना हो तो इंटीग्रल कर सकते हैं टी से लेके इनफाइनाइट तक। और अगर इसको हजार्ड रेट से निकालना हो तो हजार्ड रेट से भी हम रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं, ई रेज टू द पावर इंटीग्रल, यस, रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं हजार्ड रेट से भी। उसका फार्मूला होगा ई रेज टू द पावर माइनस इंटीग्रल 0 से टी, और यहाँ पे हजार्ड रेट, जो भी हजार्ड रेट दिया होगा, क्या फेलियर रेट कितना है, जो भी दिया होगा उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए टी आ गया है, तो यहाँ भी टी, तो यहाँ यू भी लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, तो डी यू हो जाएगा। चलिए अब हम एफ टी निकालना हो तो एफ टी को रिलायबिलिटी से निकालेंगे, तो इनके आपस में तो इनवर्स रिलेशनशिप है, तो 1 माइनस आर टी कर सकते हैं। एफ टी को एफ टी से तो नहीं निकाल सकते आप। अगर कैपिटल एफ टी को स्मॉल एफ टी से निकालना है तो इंटीग्रल करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक करना होगा। और अगर लैम्डा टी से निकालना है तो क्या हुआ, लैम्डा टी की देखिए ये रिलेशनशिप है रिलायबिलिटी के साथ, और रिलायबिलिटी की और हजार्ड इसकी सॉरी कैपिटल एफ टी की रिलेशनशिप होती है 1 माइनस, तो 1 माइनस कर दिया इसको। ऐसे ही अगर रिलायबल स्मॉल एफ टी निकालना हो रिलायबिलिटी से, तो वो देखिए वैसे तो एफ टी की कैपिटल एफ टी से तो ये रिलेशनशिप है। अब कैपिटल एफ टी के साथ अगर हमें रिलायबिलिटी की टर्म्स में लिखना हो तो हम 1 माइनस लिख सकते हैं, तो 1 माइनस आर टी लिख सकते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आर टी डी बाई डी टी ऑफ माइनस आर टी, तो यहाँ पे आ गया डी बाई डी टी ऑफ माइनस आर टी। इससे नहीं निकाल सकते और ये रिलेशनशिप हमारी इसके साथ होती है, ठीक है। ऐसे अगर आपको हजार्ड रेट निकालना हो तो हजार्ड रेट हम निकाल सकते हैं। हजार्ड रेट निकालो तो डिफरेंशिएशन इन यानी लॉग ऑफ आर, ठीक है, या ऐसे निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली इसका यूज बहुत कम है, तो इसको तो हम समझते हैं कि नकट, वैसे तो एग्जाम में तो है अवेलेबल, तो इसका यूज तो हम नहीं करेंगे इसमें। हमें जनरली जो मेन यूज है वो इन दोनों का है, ठीक है। तो मेन तो आर टी है क्योंकि रिलायबिलिटी पढ़ रहे हो आप, एफ टी तो नहीं पढ़ रहे। रिलायबिलिटी है मेन, तो रिलायबिलिटी को किस तरह से निकालोगे अगर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो रिलायबिलिटी को अगर हमें कैपिटल एफ टी से निकालना तो 1 माइनस कर सकते हैं, इससे निकालना तो ऐसे कर सकते हैं। तो मेनली दो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है और एक ये वाला formula, ठीक है। बाकी कोई भी फॉर्मूला इसमें आपस में यूज नहीं होता जनरल, इन दो फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। चलिए अब लेते हैं आगे, मीन टाइम टू सिस्टम फेलियर। ये भी टॉपिक ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं मीन टाइम और सिस्टम फेलियर।